بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی اور یہ رات ہر لڑکی کے دل میں ہزاروں ارمان لے کر آتی ہے۔ لڑکی اس رات کے حوالے سے ہزاروں سپنے آنکھوں میں سجاتی ہے اور اپنے مستقبل کے سنہرے سپنے دیکھتی ہے، مگر میری حالت قدرے مختلف تھی۔ میں ابھی اسی وقت اجلائے عروسی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بھی دلہن کے سرخ لباس میں ملبوس تھی، چہرے پر میک اپ سجا تھا، زیورات سے لدی پھلی تھی، مگر اس کے باوجود میرا دل خوف سے سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ آنے والے وقت کا احساس مجھے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا تھا، خوف سے میرا برا حال تھا۔ میں سوچ رہی تھی اگر میرے شوہر کو یہ سب پتہ چل گیا تو مجھے جان سے مار دے گا، مجھے اپنی زندگی سے نکال دے گا، اور اگر اس نے مجھے اپنی زندگی میں شامل کیے بھی رکھا تو بھی مجھے وہ دن رات ذلیل کرے گا۔ میری تو زندگی اور ذہنی سکون برباد ہو کر رہ جائے گا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب دروازے پر کھٹکے کی آواز سنائی دی تو میرا دل اور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں سر جھکا کر بیٹھ گئی، پھر میری طرف قدموں کے چاپ بڑھنے لگے اور اس کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکن بھی، اور وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے آہستگی سے میرا ہاتھ تھاما، میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنانے لگا۔ میں نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، وہ بے تحاشا وجیح تھا۔ اسی پل اس نے بھی میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بہت گہری تھیں۔ میں ان آنکھوں میں جیسے کھو کر رہ گئی۔ جب ہی میں نے پھر نظر چرا لی، نہ جانے کیوں میں اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پائی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے میں ان آنکھوں کے سحر میں ڈوب جاؤں گی، اور وہ بھی مجھے اپنے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے لگا۔ آہستہ آہستہ میرا ڈر قدرے کم ہو رہا تھا، مگر جب مجھے یہ یاد آتا کہ اسے حقیقت پتہ چلے گی تو اس کا رویہ بدل جائے گا، یہ مجھے گھر سے نکال دے گا اور میں رسوا ہو جاؤں گی، یہ تو خوف مجھے اژدہے کی مانند لگ رہا تھا۔ پھر اس نے مزید کوئی بات کیے بغیر مجھے کپڑے بدلنے کا کہا اور کمرے کی لائٹ آف کر کے سو گیا۔ میں حیران پریشان رہ گئی کہ اللہ نے کس طرح میری عزت بچا لی۔ آج کی رات تو میری عزت بچ گئی تھی، مگر آنے والے راتوں میں نہ جانے میرے ساتھ کیا گزرنی تھی۔ اگلے دن ماموں مامی بھی مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے تھے۔ مامی مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ دستور زمانہ ہے کہ شادی کے دوسرے دن لڑکی اپنے میکے جاتی ہے۔ مامی کا رویہ میرے ساتھ پہلے سے قدرے بہتر تھا، شاید میرے شوہر اور سسرال کی حیثیت کی وجہ سے ان کا لہجہ میرے ساتھ بدل گیا تھا، مگر یہ سب عارضی تھا۔ اب جب میرا شوہر گھر سے مجھے نکال دیتا تو مامی بھی میرے ساتھ پہلے جیسی ہو جاتی اور پہلے سے زیادہ برا سلوک کرتی۔ اس وقت سارا بھی خوب چہک چہک کر سب کے ساتھ باتیں کرتی۔ یہ 2 دن تو میرے مصروفیت میں گزر گئے، اور آج پھر جب میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی، اپنے شوہر کے روبرو تھی، تو آج پھر میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ مگر آج بھی میرے شوہر نے مجھے کچھ نہیں کہا، وہ میرے پاس نہیں تھا، بلکہ ادھر ادھر کی چند باتیں کرنے کے بعد وہ سو گیا۔ روزانہ ایسے ہی ہونے لگا، اور میں دل ہی دل میں خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران پریشان بھی تھی کہ آخر میرا شوہر ایسا سلوک کیوں کر رہا تھا، وہ ابھی تک میرے پاس کیوں نہیں آیا۔ میرے دل میں طرح طرح کے سوالات جاگ رہے تھے کہ کہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں تھی۔ اگر ایسا تھا تو یہ تو میرے حق میں بہتر ہوا تھا، مگر ایسا کب تک چلنا تھا؟ ایک نہ ایک دن تو ان سب کو بھانڈا پھوٹ ہی جانا تھا، اور جب مجھے آنے والے وقت کا احساس دل میں جاگتا تو میں خوف سے لرز کر رہ جاتی۔ اب پچھلے کچھ دن سے میری طبیعت زیادہ ہی خراب رہنے لگی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری بدلتی ہوئی کیفیت کی وجہ کیا ہے، اس لیے میں خوف کی وجہ سے کسی کے سامنے کچھ کہتی ہی نہیں تھی۔ میرے منہ سے جیسے کوئی آواز ہی نہیں نکلتی تھی۔ اس دن مجھے زوروں کے چکر آئے، میں زمین پر گر گئی۔ پھر میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے لگی تو میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رہ گئی۔ انہیں کہنے لگی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، میں دوا کھاؤں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میری آنکھوں میں خوف اور چہرے پر چھائی زردی دیکھ کر وہ بھی ٹھٹک کر رکی تھی۔ اگلے ہی پل ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے کہنے لگی کہ تم میری بیٹی جیسی ہو، اگر تمہاری جگہ پہ میری اپنی بیٹی ہوتی اور وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتی تو کیا میں اس کی تکلیف کو یوں ہی آنکھیں بند کر کے دیکھتی رہتی؟ چلو اٹھو، کچھ بھی نہیں ہوتا، میں تمہارے ساتھ خود چلوں گی۔ اور پھر جب وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو انہوں نے خود ہی ڈاکٹر کو میرا چیک اپ کرنے کو کہہ دیا۔ اب میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ جب ڈاکٹر میری ساس کو یہ بات بتائے گی تو ان کے دل پر کیا گزرے گی، مگر ڈاکٹر نے ساس کو واضح طور پر کہہ دیا کہ اس کو 2 مہینے کا حمل ہے۔ یہ سن کر میری ساس نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا، وہ بالکل خاموش تھی اور نارمل انداز میں بات کر رہی تھی۔
जबकि शादी को अभी महज 1 माह हुआ था। मैंने डरते डरते अपनी सास की तरफ देखा कि उन्होंने इस बात का नोटिस क्यों नहीं लिया था। हो सकता है कि वो डॉक्टर के सामने कोई बात कहकर तमाशा न करना चाहती हूँ और मुझसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। हजारों किस्म के खदशात लेकर मैं अपनी सास के साथ डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर आई। वहाँ से बाहर उन्होंने मेरे लिए मेडिसिन और फ्रूट्स वगैरह लिए और मुझसे छोटी छोटी इधर उधर की बातें करती रही। वो इस बात पर खुशी का इजहार कर रही थी और मुझे अपना ख्याल रखने को कह रही थी। मुझे अपनी सास की दिमागी हालत पर शुबा हो रहा था। उनकी जगह पर अगर कोई और औरत होती तो वो शोर मचा देती, मगर वो तो जैसे कुछ बोल ही नहीं रही थी। फिर जब हम लोग घर आए तो अब मुझे ये सोचकर डर लगने लगा था कि मेरी सास जब मेरे शोहर को ये बात बताएंगी तो तब न जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। मगर आज भी खिलाफ मामूल मेरे शोहर लेट हो गए थे और मैं जले पैर की बिल्ली की मानिंद कमरे में यहाँ से वहाँ टहल रही थी। मेरे शोहर की हमेशा से ये आदत थी कि वो घर आने के बाद पहले अपनी माँ के कमरे में जाते थे और अगर आज भी अपनी माँ के कमरे में जाते तो मेरा ये भांडा फूट जाना था। आज मेरा फिर सर सबके सामने आ जाना था। यही सोचकर मैं दोनों बातों में सर थाम कर रह गई थी। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि न जाने अब क्या होगा। पर मेरे शोहर के गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी तो मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह लरजने लगा। जो जो वक्त बीता जा रहा था मेरे दिल पर जैसे क़यामत गुजरती जा रही थी। मुझे इस बात का अंदाज़ा था कि वो अपनी माँ के कमरे में होंगे और ऐसा कैसे मुमकिन था कि मेरी सास मेरे शोहर को ये बात ना बताती। मैं यहाँ से वहाँ पर टहलते हुए यही सब सोचे जा रही थी जब दरवाजे पर खटके की आवाज़ सुनाई दी और फिर वो दरवाज़ा खोलकर जब मेरे शोहर अंदर दाखिल हुए तो मैंने डरते डरते उनके चेहरे पर नजर डाली तो मैं ये देखकर बचपन में ही मेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया था। उसके बाद मामू मुझे अपने घर में लेकर आए। मामू के घर में बज़ाहिर तो सब नॉर्मल था। जब तक नानी जिंदा रही मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी। उनके वजूद में मुझे अम्मी की खुशबू महसूस होती थी और मैं उनकी पनाहों में आकर खुद को महफूज समझती थी। फिर नानी की वफात के बाद मेरे लिए जिंदगी पहले से मुश्किल हो गई थी। मामी अब स्कूल से वापस आने के बाद मुझे घर के कामों में लगाए रखती थी। सारा भी मेरी हम उम्र थी मगर उस पर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जबकि मामी मुझसे छोटे छोटे कामों से लेकर खाना बनाने तक सब काम करवाने लगी थी। जब कभी मामू इस बात पर टोकते या कोई और रिश्तेदार इस बात पर कुछ कहता तो मामी कहती कि पराई बच्ची है, कल को इसकी शादी भी करनी है। आप लोग क्या कहेंगे कि बिना माँ के बच्ची को इसने कुछ भी सिखाया नहीं, तो लोग मुझे ही बातें सुनाएंगे। लोगों का क्या है। और उनकी ऐसी बातें सुनकर मामू खामोश हो जाते थे। वो बात ही इस कदर ठोस दलील के साथ करती थी कि मामू उनकी बात सुनकर खामोश होने के सिवा कोई चारा नहीं समझते थे। वो उन्हें ये तक नहीं कहते थे कि स्कूल में पढ़ रही है, अगर इसे घर के कामों में उलझाए रखोगी तो इसको पढ़ने का टाइम कब मिलेगा। हर रात गए तक मैं पढ़ती रहती और सुबह सवेरे ही उठ जाया करती थी। मेरी नींद बहुत कम पूरी होती थी जिसकी वजह से मुझ पर थकावट और डिप्रेशन तारी रहता था, मगर यहाँ पर मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। स्कूल के बाद कॉलेज में आ गई मगर मेरी रूटीन बिल्कुल नहीं बदली थी। मेरी रूटीन वैसी की वैसी ही थी, जबकि काम की जिम्मेदारी पहले से बढ़ गई थी। अब तो मामी छुट्टी वाले दिन भी सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पर डालकर मोहल्ले में निकल जाती थी या फिर किसी रिश्तेदार के घर में साला को लेकर चली जाती थी और पीछे में मशीन लगाकर हफ्ते भर के कपड़े धोती रहती, साथ घर के दीगर काम भी निपटा रही होती। एतवार मेरा उसी तरह गुजर जाता था। अगले दिन टेस्ट की तैयारी न करने की वजह से मुझे टीचर से अलग डांट सुनने को मिलती थी और मैं आंसू भरकर खामोश रह जाती। यूं भी मेरे पास अब करने के अलावा कुछ भी नहीं था। रफ्ता रफ्ता दिन बीतते जा रहे थे। मैं पहले सारा के कमरे में होती थी मगर अब सारा ने प्राइवेसी के नाम पर अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया था। उसको बर्थडे पर मामू ने मोबाइल गिफ्ट किया था। मामी बिल्कुल भी सारा पर नजर नहीं रखती थी कि वो किससे बात कर रही है और क्या बात कर रही है, जबकि मुझे सारा की हरकतें मशकूक लगती थी। वो हर वक्त फोन कान के साथ लगाए रखती थी। उसके होंठों पर धीमी धीमी मुस्कान होती थी। मैं जब भी उसके पास जाती तो वो फोन बंद कर दिया करती थी या मुझे डांट कर वहाँ से भिजवा दिया करती थी। उसका रवैया मेरे लिए नाकाबिले फहम था। कभी कभी मुझे उस पर शदीद गुस्सा आता था। न जाने वो किसके साथ क्या बात करती थी। एक दो बार मैंने उससे बात करते हुए सुना तो मुझे अंदाजा हो गया कि वो अपनी किसी सहेली से नहीं बल्कि किसी लड़के के साथ बात कर रही थी और यकीनन इस बात से मेरी मामी बेखबर थी। मगर
मेरे चाहने के बावजूद भी किसी को कोई भी बात मैं नहीं बता सकती थी। जानती थी कि मामी मुझे ही गलत करार देंगी। मगर एक दिन जब मैंने सारा को इंतहाई फाहिश अंदाज में किसी लड़के से बात करते हुए सुना तो तब मेरे जहन में ये बात गूंज कर रह गई कि मुझे सारा की बात मामी को लाजमी बतानी चाहिए। ऐसा ना हो कि कल कला को वो कोई उल्टा सीधा कदम उठा ले और फिर उसके लिए वापसी की कोई राह ना बचे। जब मैंने मामी को ये बात बताई तो उनका मुंह खुले का खुला रह गया था। वो ये जानती थी कि मैं झूठ नहीं बोलती थी। तभी वो उसी वक्त सारा के कमरे में गई और जब उसका मोबाइल चेक किया तो उन्हें अंदाजा हो गया कि मेरी बात में सच्चाई थी। उन्होंने सारा को उस दिन बहुत मारा और तब सारा ने उनसे माफ़ी मांगी कि आज के बाद वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी। मगर सारा ने उसके बाद से मुझसे जिद बांध ली कि वो हर बात में मुझे तंग करती, मेरे साथ जिद करती, मगर मैं उसकी हर बात को बर्दाश्त करती जा रही थी। उस दिन मामू के खानदान में ही किसी की शादी थी और वो तीनों शादी पर जा रहे थे। उस वक्त मेरे पेपर्स होने वाले थे और मुझे पेपर्स की तैयारी करनी थी, जिसकी वजह से मैं शादी पर नहीं जा सकती थी। मामी से जब अपनी मजबूरी बयान की तो वो कहने लगी कि तुम घर पर रुक जाओ, 2 दिन की तो बात है, 2 दिन बुआ को मैं यहीं पर रोक लूंगी। बुआ घर में सफाई सुथराई करने के लिए आया करती थी। बुआ भी रात यहाँ रहने पर तैयार हो गई थी। वो पहली रात थी जो मैं उस घर में अकेली गुजार रही थी। रात को मैं सो रही थी कि अचानक मुझे बाहर से खड़के की आवाज सुनाई दी। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग एक साथ चल रहे हो। मैं हैरान रह गई कि इस वक्त बाहर कौन है। बुआ को नींद में चलने की आदत थी। उमूमन वो रात को नींद में चलती रहती थी और कई बार उन्हें गिरकर चोट भी लग चुकी थी। मैं बुआ का ख्याल करके कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आई तो वहाँ पर 4-5 मर्द थे जिन्होंने अपने चेहरों को नकाब में पोशीदा कर रखा था। मैं उस वक्त कदरे अंधेरे में थी, फिर भी उन चारों ने मुझे देखा तो मुझे देखकर वो कमरे में आ गए। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था तो मैंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, मगर वो दरवाज़ा धकेलकर कमरे में आ गए और फिर मुझे ज़बरदस्ती ले जाकर उन चारों ने मेरे साथ बुराई की। मुझे जीते जी मार दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बुरी तरह से रो रही थी, चिल्ला रही थी, मगर उन लोगों को मुझ पर तरस नहीं आया। फिर मुझसे फ़ायदा उठाने के बाद वो चारों जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गए। उन्होंने घर के किसी सामान को, किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया था, बस उन्होंने घर की सबसे कीमती चीज़ को चुरा लिया था। इसका मतलब कि वो यहाँ महज मेरे लिए आए थे। मगर क्यों? मेरी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं तो उनके बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। इस वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी। अगले रोज मामू लोग जब घर वापस आए तो मामी मेरा जद चेहरा देखकर परेशान हो गई और कहने लगी कि सब ठीक तो है, क्या हुआ है तुम्हें? जबकि सारा ने मुझे अजीब पुरस्कार नजरों से देखा और बिना कुछ कहे कमरे में चली गई। उसके बाद मैंने मरे बंदे पेपर्स दिए थे। मुझे कुछ होश नहीं था कि पेपर्स में क्या लिख रही हूँ। पेपर्स के दौरान ही मेरी तबीयत अजीब सी होने लगी थी। मेरा जी मतलाने लगा, मुझे चक्कर आने लगे। उस दिन आखिरी पेपर देकर वापस आ रही थी जब अचानक ही मुझे चक्कर आ गए। मैं जमीन पर गिर गई। साथ ही एक क्लिनिक था। मेरी दोस्त मुझे क्लिनिक पर लेकर आई। जो बात मुझे डॉक्टर ने बताई वो सुनकर मुझ पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। बेयकीनी सी बेयकीनी थी जो मुझ पर फैल गई थी। मेरी दोस्त को भी इस बात पर यकीन नहीं था। जब हम दोनों वहाँ से बाहर निकले तो मेरी दोस्त कहने लगी कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो शक्ल से बिल्कुल मासूम और सीधी सादी लड़की लगती हो, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा करोगी। उसके लहजे में मेरे लिए नफरत थी। मैं उसकी बात सुनकर रोने लगी और उसे सारी बात बताई। ये सुनकर उसका भी मुंह खुले का खुला रह गया। वो कहने लगी कि तुमने किसी को भी ये बात नहीं बताई। अब जबकि सबको ये बात पता चलेगी तो कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा। सबको यही लगेगा कि तुम खुद को बचाने के लिए कहानी बना रही हो। जबकि मैं घर में आई तो बहुत ही ज्यादा निढाल थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आज नहीं तो कल सब लोगों को ये बात पता चल जानी थी। तब मेरे लिए जिंदगी तंग हो जानी थी। मैं जानती थी कि मेरे साथ ये माशरा क्या सलूक करता और मैं भी यतीम थी। मेरे सर पर तो कोई आसरा भी नहीं था। मुझे तो मामू मामी धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते। तब मुझे कौन अपनाता, कौन सहारा देता। मैं उन्हीं सोचों में गुम थी कि मेरे लिए एक बहुत अच्छे घराने से रिश्ता आ गया। ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उनका इसरार था कि उन्हें 1 हफ्ते में ही निकाह करके मुझे रुखसत करके ले जाना है। उनकी बात सुनकर मामू मामी के हाथ पांव फूल गए। लड़का भी बहुत ज्यादा अच्छा था। रिश्ते में कोई खामी नहीं थी और मामू भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो यही चाहते थे कि मेरी शादी किसी अच्छे घर में हो। वो इस रिश्ते को हाथ से खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने फिर हफ्ते के अंदर मुझे सादगी से रुखसत कर दिया था
क्योंकि उन लोगों की डिमांड थी कि उन्हें जहेज के नाम पर कुछ भी नहीं चाहिए। उनके घर में खुदा का दिया बहुत कुछ है। और जब मैं ससुराल में आई तो ससुराल में मेरी सास और शोहर के अलावा घर में मुलाजिम थे। मेरे शोहर का एक छोटा भाई था, उन दिनों पाकिस्तान में अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए गया हुआ था। अभी तक मेरा उसके साथ तारुफ नहीं हुआ था। मुझे इस बात का डर था कि जब मेरी सास और शोहर को ये बात पता चलेगी तो न जाने वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। मगर मुझे इस बात का भी हौसला था कि हो सकता है कि शादी के बाद ये गुनाह चुक जाए। मगर मेरे शोहर तो मेरे पास ही नहीं आ रहे थे। उसके बाद तो ये चीज़ वाज़ेह हो जानी थी। और अब जब मेरे शोहर कमरे में आए तो उनके चेहरे पर जब मेरी नज़र पड़ी तो मैं हैरान रह गई। उनके चेहरे के तासुरात बिल्कुल नॉर्मल थे। मुझे शक पड़ा कि शायद वो अपनी माँ के कमरे में नहीं गए थे। मैंने बातों में पूछा तो वो कहने लगे कि मैं अपनी माँ के कमरे में ही गया था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखूंगा। डॉक्टर ने बताया है कि तुम बहुत कमजोर हो और ये कि फालतू के वहम और परेशानियां मत पालो, सब ठीक हो जाएगा। उनकी बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मुझे लगा था कि शायद मेरी सास ने उन्हें पूरी बात नहीं बताई, वरना उनका रवैया ऐसा न होता। जो जो दिन बीतते जा रहे थे, खौफ से मेरा बुरा हाल होता जा रहा था। मुझे इस बात की टेंशन थी कि अब सब वाज़ेह होने लगा था और अब तो मेरे शोहर को सब पता चल जाना था। मगर वो तो जैसे हर चीज से नजरें चुराए हुए थे और मुझसे मेरे बारे में कोई बात ना करते ना पूछते। उनका रवैया मुझे हैरान कर रहा था। मगर अब मैं झिंझलाने लगी थी और सोचने लगी थी कि आखिर वो मुझसे इस बारे में क्यों बात नहीं करते, ये सब मुझसे पूछते क्यों नहीं, उन्हें इस बात से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता। उन्हीं दिनों मेरा देवर वापस घर आ गया। वो मेरे शोहर की निस्बत खासा हंसमुख और जोली तबीयत का मालिक था। उसकी जुबान मुझे भाभी कहते नहीं थकती थी। उस दिन मैं लॉन में बैठी थी जब सारा मामी के साथ हमारे घर में आई। सारा उस वक्त अपना नया लॉन का सूट पहने हुई थी। चेहरे पर बहुत खूबसूरत मेकअप किया हुआ था। मुझे सर से लेकर पांव तक टटोलती हुई नजरों से देख रही थी। न जाने वो क्या जानना चाह रही थी। मामी भी मुझे इधर उधर की बातें कर रही थी। फिर खाने के बाद सब लोगों ने चाय पीने की फरमाइश कर दी। मैं मुलाजमा को चाय बनाने का कहने आई तो तभी सारा भी मेरे पीछे आ गई और मुझे कहने लगी, चलो तुम्हारे कमरे में चलकर बातें करते हैं। वो सबकी मौजूदगी में हम दोनों क्या बातें करेंगे। मेरे साथ उसकी कभी ऐसी दोस्ती नहीं रही जो वो मुझसे इस कदर बेतकल्लफी बरती। मगर वो मेरे घर में मेहमान थी और मैं इस तरह की कोई बात करके उसे खफा नहीं करना चाहती थी। यूं भी मुझे उससे कोई गिला नहीं रहा था। मैं तो हमेशा ही उसे अपनी बहनों की तरह समझती थी। जब हम दोनों कमरे में आई तो सारा मुझे कहने लगी कि तुम्हारे शोहर का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है। जब मैंने उसे अपने शोहर के रवैये में बताया तो वो बहुत हैरान परेशान नजर आने लगी। वो कितने बेचैन हो गई और कहने लगी कि ये सब के बाद भी तुम्हारे शोहर का रवैया तुम्हारे साथ ठीक क्यों है। सारा की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। ये बात सारा को कैसे मालूम हुई। जब यही सवाल मैंने उससे पूछा तो वो गड़बड़ा गई और कहने लगी कि मैंने तुम्हें एक बार अपनी दोस्त के साथ बात करते सुन लिया था। मुझे पता चला था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो चुका है। और मैं हैरान थी कि अगर सारा को ये बात मालूम थी तो उसने अब तक इस बात की पर्दापोशी क्यों की थी। वो तो मेरी जरा सी बात पर शिकायत मामू मामी को लगा दिया करती थी। वो तो हर वक्त इस डो में रहती कि उसे मेरी कोई बात मालूम पड़ जाए। मगर उसे इतनी बड़ी बात मालूम थी तो उसने किसी को क्यों नहीं बताई। दूसरी तरफ मेरे शोहर का रवैया भी नाकाबिले फहम था। मुझसे इस कदर प्यार से बात करते थे कि मुझे हाथ तक नहीं लगाते। उनके रवैये पर मैं झिंझलाने लगी। एक दिन मैं उनके सामने फट पड़ी और उन्हें कहने लगी कि आखिर आपको इस बात से फर्क क्यों नहीं पड़ता। आप मुझसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि ये बच्चा किसका है। मेरी बात सुनकर वो हैरानगी से मुझे देखने लगे। कैसी बातें कर रही हो तुम, जाहिर है मेरी बीवी हो और ये बच्चा भी मेरा ही है। उनकी बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि आपने तो कभी मुझे हाथ तक नहीं लगाया, तो मैं बच्चे की माँ कैसे बन सकती हूँ। वो कहने लगे कि मैं और तुम सिर्फ ये बात जानते हैं, बाकी सब नहीं। इसलिए आज के बाद ये बात अपनी जुबान पर मत लाना। उनकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। उनकी कोई बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं उस वक्त तो खामोश हो गई। मगर मेरे दिल में ये सवाल घूम रहा था कि आखिर उन्हें इस बात पर कोई एतराज क्यों नहीं था। एक बार फिर से जब उनके सामने मैं फट पड़ी तो वो कहने लगे कि ये बात मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, क्योंकि ये बात मुझे तुम्हें बताते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं, क्यों ऐसी भी क्या बात हो गई है। मैं हैरान रह गई थी। वो कहने लगे कि तुम जानती हो कि उस रात क्या हुआ था। वो किस रात की बात कर रहे थे ये समझकर भी मैं अनजान बन रही थी। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर वो कहने लगे कि उस दिन मैं रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था। वहाँ पर सारा अपनी एक दोस्त के साथ आई थी। फिर वो मेरी टेबल पर आकर कहने लगी कि मैं अपना वॉलेट घर भूल आई हूँ। अब मैं यहाँ पर लंच कर चुकी हूँ, मुझे उसके पैसे देने हैं। मैंने जब सारा को देखा तो देखते ही रह गया।
میں نے اتنی کم عمر حسین لڑکی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میری بہت سی لڑکیوں سے دوستی تھی مگر سارا جیسی ایک بھی نہیں تھی۔ خوبصورت لڑکیاں تو ویسے بھی میری کمزوری تھی۔ سارا پر تو دل آ گیا۔ اسے دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بھی انہیں لڑکیوں کی طرح تھی جو روپیہ پیسہ دیکھ کر انسان کے دامن میں آ گرتی ہے۔ اس نے میرا نمبر لے لیا اور مجھ سے فون پر باتیں کرنے لگی، مگر اب میں پریکٹیکلی سب کرنا چاہتا تھا۔ یوں بھی میں لڑکیوں سے زیادہ دیر تک بلا وجہ ٹائم ویسٹ کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک وہ تھی جو مجھ سے شاپنگ کر رہی تھی، میرا ٹائم بھی دے رہی تھی، مگر اب تک میرے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر اسے ایک اور لڑکا مل گیا اور اس نے مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اس پر میں بہت زیادہ انویسٹ کر چکا تھا، اب میں اسے ایسے نہیں جانے دے سکتا تھا۔ تبھی ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر جیسے میرے دل کی مراد بھر آئی تھی، مگر تب اس نے ایک چھوٹی سی بات پر مجھ سے زیادہ بدتمیزی کی اور بہت زیادہ غصہ دلا دیا۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ پھر میں نے وہ کام کیا جو کرنے کے بارے میں عام حالات میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنے 3 دوستوں کو ساتھ لیا اور تمہارے گھر آ گیا۔ میرا مقصد محض اس سے بدلہ لینا تھا۔ جو بدتمیزی اس نے میرے دوستوں کی موجودگی میں کی تھی، اس کی وجہ سے مجھے بہت باتیں سننے کو ملی تھی۔ میرا دماغ غصے سے گھوم گیا اور اس دن مجھے اس نے باتوں میں بتایا کہ وہ گھر پر اکیلی ہے اور گھر میں بوا کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر میں اپنے 3 دوستوں کو ساتھ لے کر تمہارے گھر آ گیا۔ اس وقت میں غصے کی وجہ سے اندھا ہو چکا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر بعد میں جب میرے دوست نے لائٹ تمہارے چہرے پر ڈالی اور کہنے لگا کہ یہ تو دیکھ لیں کہ تمہاری چوائس کیسی ہے، تب مجھے اندازہ ہوا کہ تم تو کسی معصوم سی سہمی ہوئی پری کی مانند لگ رہی تھی، جبکہ وہ تو بہت زیادہ چالاک تھی۔ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ پھر میں اپنے دوستوں کو لے کر وہاں سے اسی وقت واپس آ گیا۔ گھر میں آنے کے بعد میں بری طرح سے پچھتا رہا تھا کہ میں نے کیا کر دیا۔ تمہارا رونا سسکنا بار بار میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے تمہارا سہما ہوا چہرہ آ رہا تھا اور میں بری طرح سے پچھتا رہا تھا۔ جب میں نے تمہارے بارے میں پتہ کروایا تو مجھے پتہ چلا کہ تم ایک یتیم لڑکی ہو اور تم اس کے ماموں کی بیٹی تھی، اور یقیناً اس دن سارا نے تمہیں پھنسانے کے لیے کھیل رچایا تھا اور مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ سارا نے ایسا کیوں کیا، مگر یہ سب کچھ میں تمہارے ساتھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم بلا وجہ ماری گئی۔ میں بس سارا سے اپنی بے عزتی کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی سارا نہیں بلکہ تم ہو، اور تبھی پھر میں نے اپنی ماں کو یہ سب کچھ بتا کر انہیں تمہارے رشتے کے لیے قائل کر لیا تھا۔ میری ماما میری شادی اپنی بھانجی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، مگر اب جب انہوں نے یہ ساری بات بتائی تو انہوں نے اپنی خواہش سے دستبرداری اختیار کر لی اور پھر مجھے کہنے لگی کہ وہ تمہیں ہی میری دلہن بنا کر لے جائیں گے۔ اس کے بعد میں تم پر نظر رکھنے لگا۔ تبھی مجھ پر یہ انکشاف بھی ہوا تھا کہ تم ماں بننے والی ہو۔ اس کے بعد تمہیں ایک پل کے لیے بھی انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اگر تم کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھا لیتی تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ تبھی ہم لوگ 1 ہفتے کے اندر تمہیں رخصت کروا کر گھر لے آئے تھے۔ اس کی بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی اور میں دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ مجھے سارا پر غصہ تھا، صدمہ تھا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وہ میری کزن تھی، میرے ماموں کی بیٹی تھی۔ اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ میرے دل سے اس کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھی اور دوسری طرف مجھے اپنے شوہر پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ ذرا سی غلط فہمی کی بنیاد پر اس نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ اگر اس کے دل میں خدا رحم نہ ڈالتا تو پھر میرا کیا ہوتا؟ مجھے تو کسی نے بھی قبول نہیں کرنا تھا۔ تب میرے شوہر نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ پھر کہنے لگا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے اور میں نے سب غلط کام بھی چھوڑ دیے ہیں۔ آج کے بعد میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، فکر مت کرو۔ آج کے بعد تم جیسا کہو گی ویسا ہی کروں گا اور کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ اس کے لہجے اور آنکھوں میں سچائی بول رہی تھی اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ کچھ دن کے بعد مجھے پتہ چلا کہ سارا کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا ہے۔ سارا کالج سے گھر واپس جا رہی تھی جب راستے میں اس کے چہرے پر کسی نے تیزاب پھینک دیا تھا۔ اس کا سارا چہرہ بری طرح سے جل گیا تھا، اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے مکافات عمل کا احساس ہونے لگا تھا، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ اتنا برا ہو۔ پلاسٹک سرجری سے اس کا چہرہ کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا، مگر وہ اپنی ایک آنکھ سے محروم ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ بہت بدنما لگنے لگا تھا۔ وہ حسن جس پر وہ ناز کرتی تھی اب وہ اپنے چہرے کو کسی کے سامنے عیاں کرنے سے بھی شرمندہ ہوتی تھی۔ جب میں اس سے ملنے گئی تو میرے پاؤں پڑ گئی۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ اس دن جو بھی ہوا میری وجہ سے ہوا، میں نے تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔
मगर तुम्हारी नीयत साफ थी कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बच गए और उस शख्स ने तुम्हें अपना लिया। मुझे देखो, मैं खाली हाथ हूँ। तब मुझे अंदाजा हुआ था कि मुकाफाते अमल दुनिया में ही शुरू हो जाता है। आज आप किसी के साथ जो भी करोगे, कल को आपके साथ भी वही पेश आ सकता है। जिंदगी सबके लिए इबरत का नमूना बनकर रह गई थी। उसको देखकर खौफ का एहसास इंसान को अपनी लपेट में ले लेता था। अब कौन था जो सारा को अपनाता, उसको अपनी जिंदगी में शामिल करता? यकीनन किसी में इस कदर हौसला नहीं था जो बदनुमा चेहरे वाली लड़की को अपने घर में रखता। मामू मामी उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते थे और मामी तो हर वक्त उसकी वजह से रोती रहती थी। मुझे कहती थी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। सारा ने मेरे साथ जो कुछ भी किया था वो सब उसने मामी को बता दिया था। मामी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी कि तुम्हारी बद्दुआओं ने मेरी बेटी को कहीं का नहीं छोड़ा। तब मैंने मामी को कहा कि मैंने आज तक सारा को बद्दुआ नहीं दी। उसके साथ जो भी हुआ उसकी अपनी वजह से हुआ है, उस सब में मेरा कोई कसूर नहीं है। फिर अल्लाह ने मुझे बेटे की नेमत से भी नवाज दिया था और मेरी तो जैसे जिंदगी मुकम्मल हो गई थी। मुझे जिंदगी से कोई शिकवा नहीं रहा था। अब मैं बहुत खुश थी। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन पर भी लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।